ये सारे तुम्हारे एमसीक्यू में बहुत कम आएगा। ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस तुमको बीच बीच में इवन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस विल बी आस्क्ड इन योर कॉम्प्रिहेंशन टू पैसेजेस में भी इसे सेंटेंस ऑप्शन के साथ दिया जाएगा। एंड तुमको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस के बीच में लाइक ऑर्डर की जगह पे तुमको सजेस्टेड दिया जाएगी या कोई सही आंसर देके इनसाइड पंक्चुएशन का कुछ खेल रहेगा। ओके, सो वो सारी चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। Direct or indirect speech rule number 9. This is based on the basis of change in time. This is given on the basis of change in time. Change in time का रूल्स देखेंगे। Indirect speech the word that expresses names in time or place is changed। ये तो हम जानते हैं। The name of the names in time or place is changed to words that expresses distance in indirect speech। Distance in indirect speech। So ये हमको क्या बता रहा है, अगर कोई वर्ड्स तुम्हारे डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, उस वर्ड्स को when you will be converting in indirect speech, कन्वर्ट करने वक्त बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑफ प्लेस वो वर्ड की पूरी चेंज आ जाएगी। कौन से वर्ड की क्या चेंज आएगी वो भी बता दी। नाउ विल बी कन्वर्टेड टू देन। ओके, नेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू, बोलो बताया था ना। नेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू following। Here, there, ago, you can use it as before। ये वर्ड शायद मैंने तुमको पहले दिया है ना। Today, that day, tomorrow, the next day, or you can say the following day। Hence will be converted to thence। Yesterday, the day before। Yesterday will be coming on the basis of the day before। Come, goes,
comes, go, these, those, either. Probably these words will not come. If it is come, the play of these will be in this way. Okay? So ये सारे words है. These are not just words. These are the rules. जितने भी words दिया है, these will be the rules for you priorly to learn. इस रूल्स के हिसाब से हमने बहुत खेल चुका है. फिर भी we will do one sentence हमारी जानकारी के लिए रूल के हिसाब से. He said his friend came yesterday. He said his friend came yesterday. सिंपल सा मीनिंग होएगा इसमें. He said, फिर क्या आएगा? said का said ही रहेगा. Because of reported verb, add of conjunction that. He said that his friend had came the day before. बस वर्ड की खेल है. He said that add of conjunction his friend had came the day before. had आ गया तो इसको कीमत कम करो. He said that his friend had come the day before. समझ में आया 10th स्टैंडर्ड? मतलब इसके हिसाब से भी हमने बहुत सारे सेंटेंसेस किए थे. We did many sentences. One more example. She said, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. I am busy now. अपडेटेड स्पेसिफिक वर्ड्स में ये आ ही जाएगा. आंसर क्या रहेगा इसमें? She said that change of pronoun. She was busy then. Understanding 10th standard? What happened? Why you can't hear my voice? The previous day is also okay. The previous day if you write is also okay for me. Okay, you can write on the basis of this. Say. हमने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा ना, indirect speech the word that express name in time place. हमें उसमें names in time और place में ना समझ में आया. मैं तो इसमें यही बता रही थी ना कि एक सेंटेंस कौन से बेसिस में दिया जाएगा. डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम. His friend came yesterday. So yesterday इस जगह पे क्या हो गया? It shows the time, right? टाइम बता रहे उस जगह पे. So कोई हो गया टाइम. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल लेकिन names in time है ना वो. Names in time. Yesterday names in time. टाइम के बेसिस पे yesterday करके दिया है. She was busy now. प्लेस के बेसिस में busy करके दिया है. वही वर्ड है. अंडरस्टैंडिंग. It is nothing new. वही वर्ड दिया है. It is just a play of words. टाइम इस बेसिस पे कैसे दिया है? His friend came yesterday. Yesterday is nothing but showing about a time. हो गई. दूसरी. She said I am busy. I am busy now. I am busy now. So again it is showing one type of a time only. Or you can take it on the basis of place.
ओके ओके मैम, एंड में भी आपने जो बॉक्स बनाया था उसमें लास्ट क्या लिखा है? ईदर तीदर, ईदर दिस नॉट दैट, उस बेसिस में आएगा। प्रोबेबली वो वर्ड तो तुमको क्वेश्चन में नहीं आएगा मोस्टली, बट फॉर द सेफर साइड यू कीप ऑन राइट। अगर वर्ड इधर का स्पेलिंग THI है ना? हाँ THI THER, ओके ओके मैम। चलो समझ में आया अभी सब 10th स्टैंडर्ड? Yes. So Yes. for this we are completing the chapter Atla. मैम आई हैव डाउट। Say Joshi. मैम इन रूल नंबर 1 जो इनडायरेक्ट वाला था ना उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है बोल। समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक्सक्लेमेशन का समझ में नहीं आ रहा है? नो मैम वो सेकंड पंक्चुएशन में जो है ना सेकंड और जो इंटरजेक्शन के एक्सप्रेशन का समझ में नहीं आया? ये तभी क्यों नहीं पूछा? देखो अभी इस बेसिस पे कोई बात नहीं, इस बेसिस में अगर उसमें आएगा तो कैसे तुमको आएगा? मोस्टली इट विल बी कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की वर्ड तुमको पहले से जो दिया है वो वर्ड को तुमको हटा देना चाहिए और उस वर्ड के बेसिस में एक्सप्रेसिवली तुमको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहिए। यही एग्जांपल दिया था ना मैंने, अलास नो मैम ही शाउटेड शट अप। शट अप, ओके। ही शाउटेड शट अप, ओके। उस वर्ड का फिर से कर देंगे, ही शाउटेड शट अप। सो ये वर्ड देख के तुम पहचान लिए, ये गुस्से से बता रहे ही इज ऑर्डरिंग, यस ही इज ऑर्डरिंग, यस ओके। अगर यस सो इस जगह पे he exclaimed angrily, और दूसरा भी एग्जाम्पल देते हो, he exclaimed angrily that to shut up or to keep quiet। दूसरे he ordered that to shut up। समझ में आया? ऑर्डर भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, we have to take the word before inverted comma only। the whatever change you are going to place in direct speech वो सारे तुम्हारे inverted commas के अंदर ही आएगा। so indirect speech में तो probably inverted comma तो आएगा ही नहीं। yes वही from day one I'm saying you this only, no, whenever if you are going to play in direct speech it is mandatory for all the punctuation, but indirect speech में punctuation की कोई जरूरत नहीं है apart from full stop। अगर समझ if for example यहाँ पे shut up करके डायरेक्टली दिया है, अगर इंटरजेक्शन की वर्ड आता है, जैसे मैंने दूसरे पहले जो एग्जांपल्स दिया था वो एग्जांपल्स में क्या किया था मैंने, when I converted the sentence to indirect speech, जब इनडायरेक्ट में मैं कन्वर्ट करी थी I removed the interjection, इंटरजेक्शन को उस जगह से मैं रिमूव कर दिया था। अंडरस्टैंडिंग वही तो रूल है ना हमारे, इंटरजेक्शन वर्ड को रिमूव करना है तो डायरेक्ट स्पीच में जो मैसेज हमको कन्वे कर रहे हैं उस मैसेज के हिसाब से जॉयफुली रहने दो, एंग्रीली रहने दो, वो पूरा बता जाएगा। अंडरस्टैंडिंग जोशी? yes ma'am Okay, then it is well and good. Copy this. Okay, Yes. that's it for the class. I'll send the pics in your classroom group. Okay. Yes, bye for the day, everyone. Apart from this, everyone understood about direct speech, no? Direct and indirect.